गुड आफ्टरनून पीपल, वेलकम बैक। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर द्वितीय। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एक चीजें करी थी, करंट देखा था। करंट वाज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर एंड करंट के एक्सप्रेशंस देखे थे। आई वाज क्यू बाई टी, वन ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशंस ऑफ करंट। फिर एवरेज करंट भी वी सॉ, एवरेज आई वाज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब ये मत पूछना सर ये छोटा क्यू है बड़ा क्यू क्यू, ऐसा कुछ नहीं होता, क्यू क्यू होता है। एंड इंस्टेंटेनियस करंट आई इज डी क्यू बाई डी टी। टेक्स्ट बुक से थोड़ा आगे जाकर हमने कुछ और एक्सप्रेशंस भी देखे थे कि इफ यू वांट चार्ज क्यू you have to integrate current with respect to time. So integral I dt would give you charge. Then current I, if an electron is moving with a frequency nu, so current I is E nu, which you can also write it as EV by 2 pi r. So this is V is velocity and R is the radius of the path. Then we saw conventional current, which was given by Benjamin Franklin. He said the flow of positive charges would constitute conventional current. In reality, we know it is electrons. Then we saw Ohm's law. And in Ohm's law, we saw that the ratio of potential difference to current remains constant and is called resistance. थोड़ी पूंछ लंबी हो गई इसकी. It's called resistance. SI unit of resistance is ohm. Then we saw that resistance R depends on three factors. One, the length of the conductor. Second, the cross-sectional area of the conductor. And third is the metal. So R becomes rho L by A. This is a very important equation because यहाँ से हमको यह अंदाजा आता है कि resistance depends on three factors. Resistance is a property of the conductor, while resistivity, this rho here is resistivity or specific resistance, depends only on metal, on the material and the temperature. So resistance depends on the conductor, whereas resistivity depends on the material. The SI unit of resistivity is ohm meter. Then we also saw conductivity. Conductivity sigma was 1 by rho. SI unit was Siemens meter inverse or mho meter inverse. Then we had current density, lesser known expression. Current density J was I by A, or we called it I ja. That means I is ja. Okay. And finally, vector form of Ohm's law. What was vector form of Ohm's law? J is sigma E. Well, this is a scalar form of Ohm's law, but I'm going to write the vector form also. J is a vector, electric field is a vector. So J bar is sigma into E bar. This is the vector. E बराबर दिख रहा? या अच्छी तरह लिखें. So this is the vector form of Ohm's law. आज इनमें से बहुत सी चीजों को यूज करेंगे. आज आगे बढ़ते हैं. And we will first and foremost discuss the motion of electrons inside a conductor in the absence of electric field as well as in the presence of electric field. और इस टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ एक इक्वेशंस भी देगा. सो द क्वेश्चन वुड बी what is meant by drift velocity? Explain. So we are looking at the motions of electrons inside a conductor, and during that we will study what is drift velocity. So as is usual, मेरे पास एक कंडक्टर है, वायर, मस्त. एंड इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर ऑल फ्री. एंड द पॉजिटिव आयंस, इनको कभी भी आप नजरअंदाज मत करना. ये पॉजिटिव आयंस की वजह से ही सब लफड़े क्रिएट होते हैं. लफड़े बोलूं या रेजिस्टेंस बोलूं, जो बोल रहा है बोलूं. सो यू कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री. ये बेचारा इलेक्ट्रॉन, लो एक इलेक्ट्रॉन बनाता हूं आपके लिए, ये रहा. इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर आर फ्री, whereas the positive charges, positive ions are fixed at their lattice points. फिलहाल आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई मूव करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल करेंगे. These electrons are all performing, मैंने एक ही दिखाया बट बहुत सारे हैं. They are all performing random motion, constant random motion inside the conductor. And ये random motion भी एकदम स्पेशल है. क्यों स्पेशल है?
क्योंकि इस रैंडम मोशन में भी if two electrons are moving like this, two will come from that direction. If one is going down, one will be coming up. And as a result, what would be the net charge passing through any cross section? Zero. What would be the net current constituted? Zero. So remember that in the absence of electric field, no current will be constituted. So let us write that down. In the absence of electric field, right now कोई बैटरी वगैरह कुछ लगाया नहीं है, तो electric field is absolutely absent. In the absence of electric field, the electrons in the conductor perform random motion, and in such a way that the net charge, that is net current, through the conductor, through the cross section of the conductor is zero. नहीं तो शॉक नहीं लगता? आयन का रॉड पकड़ लेते और अगर नेट चार्ज पास हो रहा होता तो मस्त शॉक बैठता, आपको पर नहीं बैठता शॉक, because net charge passing, net current passing is zero. But let me write that down. Let us consider, let there be n electrons and किसी एक का मोशन देखते हैं और उसके ऊपर से सारा एवरेज ले लेंगे. द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ith इलेक्ट्रॉन, मैं ith इलेक्ट्रॉन पकड़ रहा हूं, इज vi बार. छोटा vi बार है ये, जो इनिशियल वेलोसिटी को सिंबलाइज करने का काम करेगा. सो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ith इलेक्ट्रॉन इज छोटा vi बार. पर अगर मैं ये तो सिर्फ एक का लिया, ऐसा सब का लो, द एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल n इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखिएगा, इट विल बी consonant with what we have said so far. vi bar average, एवरेज ले रहे हैं तो 1 by n summation of all initial velocities from I equal to 1 to n is equal to big fat zero. सर कैसे जीरो कैसे? क्योंकि as I said, if one electron is moving towards this direction with the speed of 2 I cap, other electron will be moving from there with the same speed minus 2 I cap. What will be the net? Zero. If one is going with speed of plus 5 j cap, another is moving like this with the speed of minus 5 j cap. What is the net? Zero. इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, सारे मूव कर रहे हैं, सबके पास वेलोसिटी है, बट ये सारे वेलोसिटी का नेट रिजल्ट देखो, एवरेज रिजल्ट देखो, applied over all n electrons, then the initial average velocity will be zero. All right, all electrons are moving, but if I add up all their velocities, not speeds, velocities, vector formula, then the net will be zero. So this is the idea in the absence of electric field. तो आओ अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते किस बात की दे रही है, तो मस्त चकाचक रेड कलर का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया मैंने. I have attached a battery somewhere, and using that I have been able to create this electric field, and this electric field is pointing in this direction. अब इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? Prime question. Do you agree that whenever an electric field is applied, do we remember F bar is QE bar, this electron will experience force. In which direction? Because electron is negatively charged, force will be opposite to the direction of electric field. So as you can see, electric field is in this direction, force will be in that direction. तो ये कहाँ जाने वाला है? ये इधर की ओर जाने वाला है. So और यही नहीं, बाकी सारे भी जाएंगे ही. And let us see क्या होता है जाते जाते. फिर मिलेंगे चलते चलते. So when electric field is applied, पहले समा तो मान ले, electric field is applied, the electrons will experience a force in the direction
ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, वेरी गुड। तो फोर्स मिलेगा, ऑलराइट। एंड फोर्स की वजह से क्या डेवलप होगा? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कितना डेवलप होगा? आई एम श्योर एवरीबॉडी नोस एक्सीलरेशन इज ई बाय एम। एंड क्योंकि सब वेक्टर फॉर्म में डील कर रहे हैं तो ए बार, और यहां पे आ गया माइनस। क्यों सर जी माइनस क्यों डाले हैं? कोई बता सकता है? अच्छा, मैं सुन नहीं पा। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? इस। एंड फोर्स या एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? उस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सेलरेशन आर बोथ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, हेंस द माइनस। तो बढ़िया, मुबारक, एक्सेलरेशन होने वाला है। तो एक्सेलरेशन होने वाला, इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड, आई एम गोइंग टू गेट एक्सेलरेटेड, एंड एक्सेलरेशन में स्पीड बड़ी बड़ी बड़ी, एंड जाके धार, बेचारे को पता नहीं था सामने पिलर खड़ा है, ये जाके एक्सेलरेट किया, स्पीड बढ़ी, एंड इट परफॉर्म्ड कोलिजन, इट सफर्ड अ कोलिजन विद दिस पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन पिलर जैसे हैं हॉल में। आप कोई हॉल देखो, उसमें पिलर्स हैं और आप आंख बंद करके दौड़ते जाओ, गारंटी किसी ना किसी पिलर से तो टकरा ही जाओगे। तो ये इलेक्ट्रॉन, लेटर से इसकी इनिशियल स्पीड थी 2 और एक्सेलरेट किया 3 4 5 और ढाप करके टकरा गया, स्पीड हो गई 0, फिर से उठा, रैंडम डायरेक्शन में मोशन शुरू हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी चालू है मेरे दोस्त, गया यहां से दे धार, आगे बढ़ा दे धार, आगे बढ़ा दे धार, आगे बढ़ा दे। आपने देखा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक तो पहुंचा, बट यहां से यहां तक पहुंचने में इट हैज सफर्ड मल्टीपल कोलिजन्स की वजह से उसकी बार बार स्पीड कम हो जाती है, फिर वो बार बार उठता है, एक्सेलरेट करता है, यहां से यहां तक एक्सेलरेट किया, फिर स्पीड खत्म हुई, यहां से यहां तक एक्सेलरेट किया, फिर स्पीड खत्म हुई, यहां से यहां तक एक्सेलरेट किया। तो हम जानना चाह रहे हैं कि इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी इलेक्ट्रॉन की। तो लेट अस यूज द लॉज ऑफ काइनेमैटिक्स, द इक्वेशंस फॉर काइनेमैटिक्स। और शिट, मैंने नीचे वाला उड़ा दिया, कोई नहीं, फिर से लिख देता हूं। ये क्या था? वी आई बार एवरेज 1/n समेशन वी आई बार फ्रॉम i इक्वल टू 1 to n इज 0। ये याद रखना, फिर से लिखा मैंने, क्यों, कुछ काम है उसका। So in motion the electron suffers multiple collisions with the positive ions, और बेचारे की परिस्थिति गंभीर होती जाती है। अच्छा, मुझे द फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ith इलेक्ट्रॉन। अभी भी वही खड़ा है बेचारा, तो ith इलेक्ट्रॉन जिसके बारे में डिस्कशन शुरू किया था, अभी भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई बार, उसकी फाइनल वेलोसिटी जाननी है। तो अच्छा, हम यूज कर रहे हैं v बार इज v0 बार प्लस a बार इंटू टी। हमारे यहाँ के डेरिवेशन में इनिशियल स्पीड v0 बार नहीं है, वी आई बार है, और फाइनल स्पीड v बार नहीं है, बड़ा वी आई बार है। राम तेरे कितने नाम जैसा है। सो वी आई बार इज छोटा वी आई बार प्लस ए बार इंटू टी। टी आई, ले टी आई, ith इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, टी आई। अब ये तो हुआ। अच्छा, ए बार का इक्वेशन तुमको पता ही है, ये रहा। सो दिस इज वी आई बार माइनस ई बार बाय एम इंटू टी आई, इक्वेशन नंबर 3। ये तो ith इलेक्ट्रॉन की बात हुई, दिस इज द फाइनल स्पीड ऑफ द ith इलेक्ट्रॉन, बट हम तो सारों का एवरेज ले रहे थे। सो द एवरेज फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑल n इलेक्ट्रॉन्स, भाई एवरेज वाली बात आई अब, तो ध्यान से, जरा भी गलती ना होने पाए, सबकी जगह एवरेज लगा देंगे। बड़ा वी आई बार एवरेज इज छोटा वी आई बार एवरेज माइनस ई बार बाय एम इंटू टी आई एवरेज। मैंने खास ये इक्वेशन इसलिए रखा था बिकॉज मुझे पता था कि इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो छोटा वी आई बार एवरेज कितना हो गया? 0, एंड एज अ रिजल्ट, अब ये इसका काम खत्म, ये 0 हो गया, तो क्या बचा? देयरफॉर
VI bar average is minus EE bar by M into TI एवरेज, इक्वेशन नंबर 4। तो सर ये बराबर है, ओके समझ में आ गया, वेरी गुड। बट होगा क्या, कहना क्या चाह रहे हो? बहुत सिंपल चीज कहना चाह रहा, एकदम सिंपल, ध्यान से देखिए। यहां से लेकर इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, ऑलराइट, इट हैज गॉन फ्रॉम हियर टू हियर। इन गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, कैन आई मेक अ स्टेटमेंट दैट द इलेक्ट्रॉन हैज परफॉर्म्ड constant accelerated motion? Think over it. Think over it and tell me, can I say in going from one point to another, the electron has performed constant accelerated motion? No, I can't say that. Because if it would have been performing constant acceleration, तो इसकी स्पीड कंटिन्यूस बढ़ती जाती, यहां आने तक तो काफी बढ़ गई होती। बट एज यू कैन सी, स्पीड थोड़ी बढ़ती है, टकरा जाता है, थोड़ी बढ़ती है, टकरा जाता है, थोड़ी बढ़ती है, टकरा जाता है। So what I'm going to say is, on an average, the electrons do not perform constant accelerated motion, but they move with a certain fixed velocity, which is called drift velocity. This is what is called drift velocity. ये जो मैं एवरेज ले रहा हूं, इस एवरेज को मैं नाम दूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट, आखिर ड्रिफ्ट होता क्या है? You know, you have seen this many times. When something, when you are in a river, you don't want to go. You want to go in that direction. But the river will take you in that direction. Though you want to go in that direction, river takes you in that direction. आप रिवर के बहाव में खींच जाते हैं। खींच जाना, बह जाना, that is what is called drift velocity. इलेक्ट्रॉन भी कहीं और ही जाना चाहता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के इंफ्लुएंस में इट इज फोर्स्ड टू मूव इन दैट डायरेक्शन। एंड जब मैं यहां से लेकर यहां तक का देखता हूं सारे इलेक्ट्रॉन्स का, तो मैं कंक्लूड करता हूं कि ऑन एन एवरेज, एक्सेलरेशन तो कह नहीं पाऊंगा, बट दे आर ऑल मूविंग विद अ सर्टेन फिक्स्ड वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमको इक्वेशन जानना है। सो जस्ट हैव अ लुक एट इट। तो लेट अस नाउ फाइंड आउट किस तरह का मोशन है, या क्या कहे इसको। अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन एन एवरेज, वी विल से दैट द इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव विथ एक्सेलरेशन, but it moves with a certain fixed velocity which is called drift velocity. So on an average, we say that the electron moves with a certain fixed velocity, fixed speed, which is called ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर ये बड़ा ही अजीब नाम नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, अजीब नाम, पर इतना भी अजीब नहीं। अगर मैं आपको इसका रीजन बताऊं तो कतई अजीब नहीं है। तो क्यों ऐसा ड्रिफ्ट वेलोसिटी? आई एम श्योर आप लोग सब गाड़ी में गए होंगे, और गाड़ी की खिड़की में, भाई करना नहीं है ये सब करना, गाड़ी में से आप अगर अपना हाथ बाहर निकाले, गाड़ी चल रही है, आप रेस्ट पे हैं, आपका हाथ भी रेस्ट पे है, बट इफ यू मूव योर हैंड आउटसाइड द विंडो, डू यू सी दैट योर हैंड टेंड्स टू मूव बैकवर्ड? ये किस वजह से पीछे जा रहा है? हवा उसको लेके जा रही है, तो ये हवा का ड्रिफ्ट है। सपोज आप स्विमिंग पूल में गिरते हैं, यू गो इनटू द स्विमिंग पूल और यू फॉल इनटू अ लेक, यू स्विम इनटू अ लेक, आर यू एक्सपीरियंसिंग एनी टाइप ऑफ ड्रिफ्ट? नो, because the water is steady. The water is steady, so we are not experiencing any type of motion. On the other hand, if you fall into a river, do you agree, or a sea, do you agree, river का पानी या sea का पानी आपको अपने साथ खींच के लेके जाएगा? That is what is called drift. ये इलेक्ट्रॉन अपनी मनमर्जी से चल रहा था, बट इसको इस दिशा में दबाने का, धकेलने का काम इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया है।
एंड दैट इज व्हाई इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी इट विल बी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो the electron moves with a certain fixed velocity which is called drift velocity. तो ये जो फाइनल वेलोसिटी का एवरेज है मैं इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखने वाला हूं. एंड दूसरा आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कब एक्सीलरेट करते हैं, इसके बीच में ये दो कोलिजन के बीच में एक्सीलरेट करते हैं, दो कोलिजन के बीच में एक्सीलरेट करते हैं. तो ये जो टाइम इंटरवल है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स जो टीआई एवरेज का नाम दिया है इट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव collisions is called relaxation time. बाकी तो डंडा वाली टाइम है बट इस टाइम में वी कॉल इट टाउ. इस टाइम में वो बंदा मस्त इलेक्ट्रिक फील्ड को एंजॉय करके एक्सेलरेट कर रहा है. सो इक्वेशन 3 क्या बन जाता है, इक्वेशन 3 बिकम्स, अब ये बड़ा वी आई एवरेज की जगह मैं लिखूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd bar is equal to same old minus E bar by m and what is Ti average, we call it tau. तो ये आ गया मेरा इक्वेशन किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का. एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन आने के साथ इसका मैग्नीट्यूड भी लिख दूं मैं. हम इसका मैग्नीट्यूड खास इस्तेमाल करेंगे. वी आर गोइंग टू यूज मैग्नीट्यूड. इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड सो मॉड वीडी बार या सिंपली वीडी इज, ये माइनस तो चला जाएगा क्योंकि माइनस सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा था. तो ई बाय एम इंटू टाउ. दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज द इक्वेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एक्चुअली द क्वेश्चन दैट दे आस्क इन द एग्जाम इज explain the motion of electrons in a conductor in the presence of electric field and derive the equation for drift velocity. 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, यहां तक आपको लिखना होता है. So the equation for drift velocity in vector form is this and scalar form में Vd is E by m into tau where tau is called relaxation time. ये रहा तुम्हारा relaxation time tau. तो इस टॉपिक से हमको इतना पता चला कि इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हो कंडक्टर में तो वो मल्टीपल कोलिजन्स करता हुआ आगे बढ़ता है. एंड यहां से यहां तक के उसके मोशन को हम अगर एवरेज पे देखें तो ऑन एन एवरेज वी से दैट द इलेक्ट्रॉन मूव्स विद अ सर्टेन फिक्स्ड वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. मोशन कैन नॉट बी कॉल्ड अ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन ये आपके सामने है. अब मैं नई चीज करूंगा, इसको यूज करके I will try to find out a relation between current and drift velocity. It's a very lovely equation, a very logical conclusion. The relation between current and drift velocity. तो मेरे पास एक कंडक्टर है, relation between current I or you can call it current density J and drift velocity Vd. Now suppose I have a conductor, मेरे पास एक कंडक्टर है एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स मूव विद अ सर्टेन फिक्स्ड वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd. तो इन टाइम डेल्टा टी कितना डिस्टेंस कवर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स. इन टाइम डेल्टा टी the distance traveled by the electrons is, distance is speed into time. तो Vd delta t. तो अगर सपोज ये क्रॉस सेक्शन है, उधर से लेकर ये क्रॉस सेक्शन तक मैं नाम दूं दिस इज Vd delta t एंड ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं मस्त. ओके जा रहे आगे. अच्छा, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज ए, आई एम श्योर यू नो दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया. ये इतनी लेंथ है Vd डेल्टा टी, इतना एरिया है.
तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस मच? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इफ CS area, CS मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, is A, then volume occupied by the electrons is, volume is area into distance. Distance कितना है? VD delta T. तो A VD delta T. ओके, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है इलेक्ट्रॉन्स ने? A VD delta T. अच्छा, if there are n electrons per unit volume, अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आई है. इस n is called number density, number of electrons per unit volume. So if there are n electrons per unit volume, तो फिर इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स, तो V मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स? NV. तो if there are n electrons per unit volume, then the number of electrons in the given volume is n into वॉल्यूम कितना है? AVD डेल्टा T. बहुत लंबा हो गया ये. AVD डेल्टा T, इक्वेशन नंबर 2. अच्छा, how much charge is passing? The amount of charge passing through the conductor in time delta T. The amount of charge passing through the conductor, yeah, this is blackness, in time delta T is, Q is NE. N कितना है? NAVD delta T. तो NAVD delta T into E. और हमको पता है इलेक्ट्रिक करंट I is Q by T. तो Q अपॉन कितना टाइम की बात हो रही है? डेल्टा T. तो Q का इक्वेशन ये रहा, NAVD डेल्टा TE over delta T. Delta T cut. What do you have? NAVDE. Now people tend to call it NAVDE. They call it nowadays. But मेरे लिए बहुत ही डिप्रेसिंग नॉनसेंस जैसा है nowadays. पर शुक्र है nowadays. ये नहीं करता आवड़े नहीं. तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, थोड़ा सा फेर बदल, and I reach a very beautiful equation. I like NEVDA. अगर आप ध्यान से इस चीज को देख रहे हैं तो इसमें आपको एक जगह का नाम नजर आएगा. This जगह is called Nevada. So I like Nevada. Nevada is a state in the United States of America. And बाकी तो रेगिस्तान है पूरे नेवाड़ा में. बट एक जगह है वर्ल्ड फेमस जहां दुनिया भर के लोग आते हैं, डेजर्ट के बीच में. आई एम श्योर यू नो दैट प्लेस इज कॉल्ड लॉस वेगस. तो जाएंगे किसी दिन. आई लाइक नेवाडा. तो नाउडे इज बैड, आई लाइक नेवाडा. और ये नेवाडा की वजह से ही मेरे को एक बहुत ही अच्छी चीज मिली, करंट डेंसिटी. आई एम स्टेइंग ऑन द कोर्स. करंट डेंसिटी का इक्वेशन सबको पता ही है. करंट डेंसिटी जेंटलमैन, J I by A. तो नेवाडा बाय ए काट, तो J is, अब इसका कोई निमोनिक नहीं है कि J is नेवाड, ऐसा कुछ नहीं होता. J is NEVD. हमको तो नेवाडा में इंटरेस्ट था तो आई लाइक नेवाडा, उसकी वजह से आया J is equal to NEVD. अच्छा, ये तुमको VD याद है? बचपन में यहां आया था, बट अभी थोड़ी देर पहले ही VD देखा आपने. E by M इंटू टाउ. तो उठा करके इसको यहां पे लगाएंगे, J is NE इंटू E by M इंटू टाउ. भाई खोल दो ना जरा ब्रैकेट. तो J is NE स्क्वायर E by M इंटू टाउ. सर ये क्या आ गया? अभी तो स्टेशन आया बीच में, गाड़ी सिग्नल पे खड़ी है.
और अभी यू रिमेम्बर ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हमने अभी थोड़े टाइम पहले ही देखा था, लास्ट टाइम डिराइव किया था हमने उसको। सो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ये पूरा ही उड़ा देता हूं, हाई नेवाडा बाय नेवाडा, मैं बहुत यूज करूंगा नेवाडा को, बहुत ही बढ़िया चीज है वो। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स का लॉ, J इज सिग्मा ई, ये इक्वेशन नंबर 6 और ये इक्वेशन नंबर 7, ये भी J ये भी J, shall I safely equate 6 and 7? तो इक्वेटिंग 6 and 7 क्या मिल जाएगा श्रीमान, सिग्मा ई n ई स्क्वायर ई बाय एम इंटू टाउ, ई का मरना निश्चित है, तो क्या मिला, क्या मिला, सिग्मा इज एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, एंड आप तो जानते ही हैं सिग्मा इज 1 बाय रो, तो 1 बाय रो इज एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, जिसको पलटी मार के उल्टा कर दूंगा तो मुझे मिलेगा रो इज एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। नाउ द क्वेश्चन इज, सर इसका क्या करने का, कुछ नहीं करने का, मस्त इक्वेशन है, बैठ के देखने का इसको। रो इज एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, you know, you will be surprised if I tell you कि this is the proof that on increasing temperature in a conductor the resistivity also increases। ये सुन के अच्छे अच्छे कुर्सी से गिर जाते हैं, बोले सर पूरे में कहीं भी टेम्परेचर का जिक्र नहीं है, और फिर भी इस इक्वेशन को लिखने के बाद यू आर सेइंग दैट दिस इज द रिलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। व्हाट आर यू joking or something? No, I'm not joking. I am absolutely not joking. Listen to me please. मैंने टेम्परेचर की बात करी, सपोज कोई वायर है, उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, डू यू अग्री टेम्परेचर बढ़ाने से जो हीट एनर्जी होती है वो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, एंड इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी मिलने से देयर मोशन बिकम्स फास्टर, द कोलिजन्स बिकम फास्टर। सो इनिशियली जो ऐसा चलता था इलेक्ट्रॉन ठिश ठिश ठिश, नाउ विथ मोर थर्मल एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी, इट विल गो लाइक टिश टिश टिश। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? पहले टिश टिश टिश, नाउ टिश टिश टिश। As a result, did you see the time interval between two collisions? The time interval between two collisions decreased, and due to tau decreasing, rho will increase. So whenever temperature increases, the resistivity and hence the resistance of a conductor will increase. फिर से एक बार समझा दूं, if I increase the temperature of a conductor, the collisions become faster. Collisions become faster, the time interval between two collisions decreases, and hence resistivity rho will increase. Yes, so this is how the entire cookie crumbles. Let me write that. You want me to write this? On increasing temperature, let me write this. On increasing temperature, collisions become faster, so relaxation, मुझे ये तो उड़ाना ही पड़ा, relaxation time tau, relaxation time tau decreases, due to which the resistivity rho will increase. You know, this is a very important characteristics of conductors, very important characteristic of conductors, that on increasing temperature resistance and resistivity will increase. Semiconductors में इसका उल्टा है कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो resistivity decreases. This is the most important differentiating characteristic between conductors and semiconductors. कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस घटेगा। सो इसको जस्ट एक मेंशन कर देते हैं, इन सेमीकंडक्टर्स
on increasing temperature their resistance decreases. तो ये हो गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक difference between conductors and semiconductors. Let me tell you, बहुत अलग टाइप के रेजिस्टर्स बाजार में अवेलेबल है एंड पहले पहले के जमाने में कार्बन वायर बाउंड रेजिस्टर आते थे जिसमें टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स. सो पहला तो है वायर बाउंड. ये जूने जमाने में यूज होता था. एक सिलेंडर लेते थे और उसके ऊपर वायर बाउंड करते थे तो काफी बड़ा सा रेजिस्टर क्रिएट हो जाता था. इन दी ओल्डन टाइम्स दिस वाज द वे ऑफ मेकिंग रेजिस्टर्स, बट इट वाज बिग, इट वाज एक्सपेंसिव, नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली. इसको रिप्लेस किया किसने? कार्बन रेजिस्टर्स. कार्बन रेजिस्टर्स कार्बन से बने होते हैं और उसके एलोट्रोप से बने होते हैं और बहुत छोटे होते हैं. आई थिंक मेरी नाखून की साइज का लेंथ का होता है एक कार्बन का रेजिस्टर. उसका मैं ब्लोन अप वर्जन आपको दिखा सकता हूं. दिस इज अ कार्बन रेजिस्टर. आई हैव zoomed इट अप मेनी टाइम्स एंड ये छोटे होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, इजी टू यूज होते हैं, सो दे इजीली रिप्लेस्ड वायर बाउंड रेजिस्टर्स. But the biggest problem with a carbon resistor is they are very small actually. अगर आप अपने कैलकुलेटर का पीछे का कवर खोलेंगे, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड निकलेगा, उसमें देखेंगे तो छोटे छोटे रेजिस्टर्स होंगे. क्रीमिश कलर के होते हैं छोटे छोटे रेजिस्टर्स, बट चावल के दाने से लगभग दुगनी साइज जितना, बस उतना ही बड़ा होता है. अब ऐसे रेजिस्टर पे अगर आप सपोज उसकी वैल्यू लिखो लाइक से 270 ओम, तो without a magnifying glass it will be impossible to read this number. Now कोई भी इलेक्ट्रिकल काम कर रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहा हो और रजिस्टर आए और उसको पढ़ना है कितनी उसकी वैल्यू है, हर जगह उसके पास मैग्नीफाइंग ग्लास हो, ये पॉसिबल नहीं है. तो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम what they came up with an idea to code this using colors. So provided you are not color blind, you might be able to decode the value of this resistor. So color किस तरह होता है? It is in the form of rings. छोटी छोटी rings होती है उसके ऊपर, 3 या 4 रिंग होती है. So like suppose this is a carbon resistor, एक रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग और चौथी हो तो चौथी रिंग, एंड अलग अलग कलर से होती है. फॉर एग्जाम्पल ये रेड है, ये रेड से ऑरेंज है, ये ग्रीन है और ये गोल्ड. तो अगर आपको ये कोड पता हो तो you can easily find out the value of this resistor without using a magnifying glass or without getting hassled. So the code using which we find out the value of such resistors is called color code for carbon resistors, which is going to be our next topic. So it's a very lovely, very interesting code, color code for carbon resistors. Don't worry, I'll draw the diagram again. पर पहले कलर कोड का जान लेना जरूरी है. सो द टॉपिक इज कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस. ओके, ये पेन की पुंगी लग चुकी है. पहला ये कलर का, फिर वैल्यू, द फर्स्ट and second bands, ये 10 raised to x मतलब third band, and ये tolerance which is the fourth band. Now let me start with the code. ये थोड़ा दबा दे वो ज्यादा अच्छा है. I'll tell you what tolerance is, don't worry.
ट्रिपल नेमोनिक, BBROY, Roy of Great Britain has a very good wife. You might also call it BB Roy of Great Britain has a very gorgeous wife. Now these words, these letters are the first letter of every color, as I'm going to show you. So the first is black, then we have brown, then we have red, फिर आया orange, then we have yellow, then green, then blue, violet, gray, white. Starting with 0, ending with 9. सर ये ब्लैक और ये ब्राउन है तो याद कैसे रहेगा? भाई दुनिया की शुरुआत में सब कुछ ब्लैक था और जब खत्म हो जाएगी ना सब कुछ व्हाइट हो जाएगा. सो स्टार्टिंग विद ब्लैक, एंडिंग विद व्हाइट. बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, हैज अ वेरी गुड वाइफ. ब्लैक 0, व्हाइट 9 और बाकी सब बीच में. ब्राउन इज 1, रेड इज 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन इज 5, ब्लू इज 6, violet 7, gray is 8 and white is 9. ये 10 raised to x बाइंड है, मतलब जो भी यहाँ वैल्यू है वो 10 raised to में आती है. तो ये 10 raised to 0, 10 raised to 1, 10 raised to 2, this is 3 and this goes on likewise. अच्छा, ये थर्ड बैंड में हो सकता है कोई और दो कलर भी हो, लाइक गोल्ड या सिल्वर. अगर गोल्ड है तो इट स्टैंड्स फॉर 10 raised to -1 एंड सिल्वर है तो 10 raised to -2. कोई और कलर 10 raised to x बैंड में हो नहीं सकता. टॉलरेंस बैंड, टॉलरेंस मतलब प्लस माइनस वेरिएशन. तुम जैसे जैसे इस्तेमाल करोगे रेजिस्टर को तो उसके रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज वेरिएशन आएगा. अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी रेजिस्टर बनाती है तो वो चौथे बैंड की जगह पे गोल्ड लगाएगी, इंडिकेटिंग अ परसेंटेज वेरिएशन ऑफ ±5%. कोई इंटरनेशनल कंपनी बनाए तो. कोई नेशनल कंपनी बनाए, अच्छी कंपनी, पैनासोनिक वगैरह, तो वो चौथे में सिल्वर लगाएगी, इंडिकेटिंग अ टॉलरेंस ऑफ ±10%. और अपने नरोडा जीआईडीसी में अगर कोई कंपनी रजिस्टर बनाए, रजिस्टर मेकिंग इज अ कॉटेज इंडस्ट्री, एमएसएमई है वो. तुम वटवा जीआईडीसी या नरोडा जीआईडीसी में एक बड़ा सा शेड भाड़े पे ले सकते हो, 15 लोगों को बिठा सकते हो, 2-3 छोटी छोटी मशीन यूज कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन रजिस्टर मेकिंग एंटरप्राइज. तो वो लोकल है, लोकल रजिस्टर की कोई ज्यादा वो नहीं है, सस्ते होते हैं बहुत. तो उसमें चौथा बैंड होता ही नहीं है, चौथा बैंड नहीं होता, इंडिकेटिंग अ वेरिएशन ऑफ ±20%. मतलब भगवान भरोसे है तुम्हारा रजिस्टर. वैसे अच्छे आते हैं तो मस्ती करो, पर होता है कभी कभी 10 रजिस्टर में से 2 उड़ जाते हैं तो चलता है. सो दिस थिंग्स हैपन. नाउ हाउ डू आई यूज इट, हाउ एम आई गोइंग टू यूज इट? तो लेट्स टेक द अर्लियर एग्जांपल. हमारा क्या था रजिस्टर? रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड गोल्ड. अच्छा ध्यान से देखिएगा, पहले 2 कलर की वैल्यू सीधी सीधी पुटअप कर देंगे. पहला कलर कौन सा है? रेड. तो रेड कितना है? 2. मैं इधर ऐसे एरो मार दूं ताकि आपको अंदाजा है, लेकिन मेरे को तो सीधा लग रहा है, पर आपको पढ़ने में शायद दिक्कत पेश आएगी. तो रेड की वैल्यू कितनी? 2. तो दिस इज 2. सेकंड क्या है? ऑरेंज. ऑरेंज की वैल्यू कितनी है? 3. तो ये हो गया 3. तो 3 में 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय, अब ये आया ग्रीन.
ग्रीन 10 रेज टू एक्स, थर्ड बैंड है ये, 10 रेज टू एक्स, कितनी वैल्यू है 10 रेज टू एक्स में, वैल्यू है 5, तो ये है 10 रेज टू 5। एंड गोल्ड चौथा बैंड, चौथे बैंड में गोल्ड का टॉलरेंस कितना, प्लस माइनस 5%। कैन यू सी, और ओम लगाना मत भूलना। सो 23 into 10 raised to 5 plus minus 5% ohm. This is the value of the resistor. एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल ब्लू, वायलेट, ग्रे, सिल्वर। First band is blue, second is violet, third band is grey, fourth band is silver. तो इसका रेजिस्टेंस, भाई ब्लू का वैल्यू कितना 6, तो 6। सेकेंड बैंड इज वायलेट, वायलेट का वैल्यू कितना 7, तो 7 इंटू, थर्ड बैंड इज ग्रे, ग्रे का 10 वैल्यू कितना 8, तो 10 रेज टू 8। एंड प्लस माइनस सिल्वर, सिल्वर का टॉलरेंस कितना 10%। Don't forget to write ohm. Do you understand? Let's take one more example. Just a minute. I'm back. 1 2 3 4। अच्छा, ग्रीन, ऑरेंज, गोल्ड, सिल्वर। फर्स्ट बैंड इज ग्रीन, सेकंड इज ऑरेंज, थर्ड इज गोल्ड एंड फोर्थ इज सिल्वर। तो पहला जो है ग्रीन, ग्रीन का वैल्यू कितना 5, सो दिस इज 5। सेकेंड इज ऑरेंज, ऑरेंज फेवरेट है मेरा 3 इंटू, थर्ड इज गोल्ड। पीपल, थर्ड बैंड में गोल्ड है, गोल्ड हो तो 10 रेज टू माइनस 1, सो 53 इंटू 10 रेज टू माइनस 1। एंड लास्टली सिल्वर का बैंड है टॉलरेंस में, तो प्लस माइनस 10% ओम। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू लुक एट इट। और 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। लेट अस find out whether you've understood. No one will answer out of turn. Let's see. So my first, ये fourth होगा actually. Blue, red, green, silver. Now who's going to tell me the equation for this? Let's find out who is ready. Who is ready? Who is ready? Yeah, Ashvi, you can tell me value. Yes, sir. Go on. Blue You can use the table. 6 62 62 into how much is green? 10 raised to 5 Very good. Anything else? plus minus Plus minus. It is silver. 10%. 10%. Khatam? Yes, sir. No. ओम। ये ओम नहीं लिखोगे तो आधा मार्क काट देगा एग्जामिनर, सो बी वेरी केयरफुल। एक और एग्जाम्पल, ठाक 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 ठाक, ब्लू, अरे फिर से ब्लू आया है, ये मेरे फेवरेट कलर है। ब्राउन, ब्राउन ब्राउन ब्राउन, ग्रीन, gold,
silver. Yes, who's going to tell me now? Anybody is ready? मैं बोलूं? Who is man? I don't know who is man. I didn't find out. Sir, Udit. Go ahead, buddy. Sir, 25. ओ सेठ जी, ब्राउन है पहला, ब्राउन. पावर -1 प्लस माइनस 10% हो. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. पहले सेकंड वाले में लोचा मार दिया था. अच्छा, मैंने एक एग्जाम में ऐसा पूछा था कि वी हैव अ रेजिस्टर हुज कलर्स आर इन द ऑर्डर ऑफ द कलर्स ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग. व्हाट वुड बी इंडियन नेशनल फ्लैग? What would be the resistance of such a resistor? Can you find out and tell me? Suppose I have a resistor whose color bands are of the order of the colors of the Indian national flag. What would be the resistance of such a resistor? Come on, somebody. Well, this is a trick question because in order to solve it, you need to know the colors of the Indian national flag. Do you know the colors of the Indian national flag? Let's find out. Please don't get hassled. Indian national flag is orange, white and green. Yes, sir. Thank you so much. I was like, sir, under the impression public को पता है कि नहीं. So come on, give me an answer, anybody? Somebody? 39 into 10 raised to 5. Sorry? 39 into 10 raised to 5. 39 into 10 raised to 5. Very good. But, you know, majority लोगों ने यही लिखा था. पर वो भूल गए कि भले हमारे झंडे में 3 ही कलर है, रेजिस्टर में 4 होते हैं, और अगर चौथा नहीं है तो इट इंडिकेट्स प्लस माइनस 20%. तो जिन्होंने 39 इंटू 10 रेज टू 5 ओम लिखा था उनको सिर्फ आधा मिला, और जिन्होंने प्लस माइनस 20% लिखा था उनको पूरा दे दिया गया. क्या? मार्क. बराबर है. तो दिस इज व्हाट इज द what do you call it, the color code for carbon resistors. I'm going to take this off now. You'll find the video on YouTube, so there's no issue. Let us go on. A couple of small things. फिर एक आध illustration करने की भी मेरी इच्छा हो रही है. ये I hope आपको आपके पास टेक्स्ट बुक पड़ी है. I hope लेके आए टेक्स्ट बुक. Sorry. नेट बहुत चला गया. Oh, that's so you know, heartbreaking. That's so heartbreaking, buddy. सर 2 मिनट सुनो, ड्रिफ्ट में डाउट है. बोलो. सर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी तो पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट घूमने की होती है, तो फिर उसमें ड्रिफ्ट कहाँ आया? बेटा, अगर सपोज तेरा हाथ जो है, मैं तेरा हाथ का एग्जांपल दे रहा था, तू स्टेडी है, तेरा हाथ स्टेडी है, तो फिर बाहर रखने पर तेरा हाथ पीछे क्यों जाता है? हवा की वजह से जाता है ना. बराबर? You understand this idea? Okay. Now, in a conductor, the electron was moving randomly. But जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उसकी मर्जी हो या ना हो, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में खदेड़ा गया. You know, उसे खींचा गया, उसे धक्का मारा गया. तो ये जो हो रहा है, ये जो फिनोमिनन है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट. इलेक्ट्रॉन बेचारा 2 मीटर पर सेकंड से चला जा रहा था, अचानक उसके ऊपर एक्सीलरेशन डाला गया. किसने डाला है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने. इलेक्ट्रॉन को जाना था या नहीं था वो कोई पूछ नहीं रहा है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना एक्सीलरेशन उस पर सुपर इंपोज किया. दैट इज व्हाई दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट. तो इसका मतलब ये है, यू नो, नदी में लोग नहाने पड़ते हैं, किसी को इस तरफ जाना है, किसी को उस तरफ जाना है, किसी को उस तरफ जाना है, पर नदी कैन यू सी सबको एक ही दिशा में बहा ले जाती है. यू अंडरस्टैंड? हाँ सर, आ गया. हाँ, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन कोई भी कहीं भी जा रहा था, बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने सबको एक दिशा में बहने पे मजबूर कर दिया. दैट इज द प्राइम रीजन वी कॉल इट ड्रिफ्ट. ओके. मोबिलिटी. व्हाट इज मोबिलिटी? अच्छा, मोबिलिटी पहले डिफाइन कर लेता हूं. द ड्रिफ्ट वेलोसिटी per unit electric field
is called drift velocity. So according to this definition, drift velocity per unit electric field is called drift velocity, नहीं mobility. तुम भी क्या देख रहे हो? So mobility का सिंबल है mu. तो mu drift velocity is what? Vd, and electric field is what? E. So mu is Vd by E. One of the first definitions, this is a theoretical topic. One of the first definitions of mobility mu is Vd by E. Also, अब Vd और E को यूज करते हैं. You know J is sigma E and J is any Vd. ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है और लास्ट टॉपिक में J is equal to any Vd हमने फाइंड आउट किया. इसमें मैं इन दोनों को इक्वेट करने वाला हूं. तो सिग्मा ई इज एनी वीडी. मैं ई को यहां से नीचे उतार रहा हूं, एनी को यहां से नीचे उतार रहा हूं. सो वीडी बाई ई इज व्हाट? सिग्मा बाय एनी. एंड व्हाट इज वीडी बाई ई? म्यू. सो म्यू वीडी बाई ई इज सिग्मा बाय एनी. तो म्यू का एक और एक्सप्रेशन हमको मिल गया है. म्यू इज सिग्मा बाय एनी. एक और फाइंड आउट कर रहे हैं. फाइनली तुमको याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी क्या था? ई बाय एम इंटू टाउ. द इक्वेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाज ई बाय एम इंटू टाउ. ई को यहां से मैं नीचे उतारूं तो डू यू एग्री म्यू मिल जाएगा. वीडी बाय ई इज ई टाउ बाय एम. तो मैंने 3 इक्वेशन डिराइव किए ड्रिफ्ट मोबिलिटी के लिए. पहला तो डिफाइन किया मोबिलिटी म्यू इज वीडी बाई ई, देन आई गेट म्यू इज सिग्मा बाई एनी, एंड देन आई गेट म्यू इज ई टाउ बाई एम. इसको यूज करके मैं इसका ऐसा यूनिट लाने वाला हूं. ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड. नाउ हाउ कम? You know Vd is in what? Meter per second. Electric field is in what? Volt per meter. ये मीटर चढ़ के इसके साथ आ गया. मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड. तो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी. एज एन असाइनमेंट होमवर्क, फाइंड द अदर यूनिट्स ऑफ मोबिलिटी. मतलब इस इक्वेशन को यूज करके क्या आएगा, इस इक्वेशन को यूज करके क्या आएगा. कभी कभी एमसीक्यू में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी. तो उसके लिए कौन से हैं वो फाइंड करना जरूरी है. सो इन एन असाइनमेंट ये मैंने इसको यूज करके फाइंड किया. आप इसको और इसको यूज करके दूसरे SI यूनिट्स फाइंड करो. आई एम गोइंग टू डू इलस्ट्रेशन नंबर 3.1. इफ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक्स, आई हैव ऑल्सो nearly opened mine. And illustration 3.1 I think is on page 99. मेरी टेक्स्ट बुक कहाँ है? Illustration 3.1 page 99. And इस पेज नंबर पे उसने मेरे को एक सवाल पूछा है तो वो देखेंगे. So illustration 3.1. What is the question? They say that estimate the average drift speed of the conduction electrons in a copper wire having cross sectional area 1 into 10 raised to minus 7 meter square. Drift speed find करनी है and carrying current of 1.5 amp. The density of copper. अच्छा, डेंसिटी को हम हमेशा रो लिखते हैं, पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी. तो मैं डेंसिटी को डी लिखूंगा. डेंसिटी इज 9 into 10 raised to 3 kg per meter cube and atomic mass m 63.5 ग्राम पर मोल. तो इतना मुझे चाहिए. ओके, आई एम गुड. सबसे पहली बात, ये ग्राम पर मोल में है तो आपको इसको केजी में कन्वर्ट करना होगा. ओके, नाउ तुम बोलोगे सर आई लाइक नेवाडा. लवली, पर लोचा ये है, करंट है, ई है, पता है, एरिया है.
पर n नहीं है, नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला है? मैं इसको नोट में लिखता हूं। नंबर डेंसिटी फाइंड करने का मस्त फॉर्मूला, छोटा n is dNA by m. D is density, Ne is Avogadro number and m is atomic mass. तीनों हमारे पास मौजूद है। एवोगैड्रो तो हमको पता ही है। thus I is नेवाडा and n की जगह dNA by m into E into VD into A। VD को आइसोलेट करेंगे तो MI मिशन इम्पॉसिबल अपॉन dNA सब कुछ रेडी है। M 63.5। I hope you have got your calculating colors on the go। डेंसिटी एवोगैड्रो नंबर, मैं 6.02 नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ 6 लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10⁻⁻⁹, एरिया 10⁻⁻⁷। लेट्स फर्स्ट टेक केयर ऑफ द 10 raised to 23 plus 3 26 minus 17 minus 7 26। तो ये सारे 10 raised to उड़ गए, तो 10⁻⁻³ फाइनल आएगा। अच्छा, ये 1.5 1.6 नियरली गॉन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट अ बॉल पार्क। 9 6 54, 63.5 by 54 करीबन 1.1 जा। So VD is करीबन 1.1 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। 10⁻³ is मिलीमीटर, तो मिलीमीटर पर सेकेंड। ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की इन अ कंडक्टर। द बी पार्ट is saying that compare the drift velocity of these electrons with the velocity of copper atoms in a conductor. You know, we have to use the equation for a gas. You remember, for a gas, kinetic energy, which is half mv square, which is 3/2 kBt. So 3/2 kBt हमको यूज करना है, एंड यहां से 2 कट जाएगा, so you are left with V is root of 3 kBt by m. This T is the absolute temperature, room temperature 300 Kelvin, मास दिया हुआ है, kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता है हमको, और उसको करके उन्होंने एक रफ आइडिया दे दिया है, करीबन 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। सो यहाँ पे 1.1 into 10⁻⁻3, forget the 1 and forget the 2, ये 10⁻⁻3, ये 10⁻², मतलब isn't this speed nearly 10⁵ times the velocity of drift of the electrons? Yes, it is. That is, it is nearly 10⁵ times the drift velocity of the electrons. And thirdly, they have asked us find out the speed of propagation of the electric field. मतलब कितनी स्पीड पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहता है वो फाइंड करने को कहा है। तो मैं इसको C नाम दूंगा। C, that the speed of propagation of the electric field in a conductor, yeah, anywhere, is same as speed of light, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जैसे ही तुमने ये कंडक्टर के दो एंड्स पे बैटरी लगाई, भले जितना ही लंबा हो, पर एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी तेजी में पहुंच जाएगा, कितनी स्पीड पे पहुंच जाएगा, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब ऐसा नहीं कि वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हुआ है, धीरे धीरे आएगा, नहीं, धीरे धीरे कुछ नहीं होता, स्पीड ऑफ लाइट पे प्रोपोगेट करता है, और हर इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड का असर तुरंत ही पड़ जाता है। तो यहाँ पे हम काम को रोक रहे हैं, खत्म कर रहे हैं आज का काम। नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल देखेंगे, बैटरी वगैरह का क्या होता है देखेंगे। टिल दैट टाइम एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।